Hello friends, hi, welcome to Unacademy. This is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. We are having today a journal round for class 11th accounts. So I welcome you all to participate in this quiz. बहुत मजा आएगा. We will learn so many things today. और चेक करते हैं आज कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी मेंटेन है जर्नल के बारे में. Right, let's begin with this fastest finger round. I am become honors, qualified from Delhi University and a chartered accountant. I am educator with the plus courses on Unacademy for class 11th and class 12th, business study as well as accounts. Why you should use the plus features? Why you should join the plus courses? Many students ask what is the benefit of using this, of joining these plus courses. You can learn live from the comfort of your home. Means anywhere you are, wherever you are, any place, remote areas, urban areas, hill areas, or at your home, or traveling in a bus or in your car, wherever you have internet accessibility, you can take your live classes. Learning live from the comfort of your home. बिल्कुल घर के माहौल जैसा आप easily कहीं से भी क्लास को ले सकते हैं. Even if you miss any class, you can watch the recorded class. Plus feature. ये क्या है नीचे? This is a referral code Ram Ahuja going on. Yeah. Means if you plan to join the plus course, rather you should join the plus course, you should use this referral code Ram Ahuja. You will get 10% straightforward discount. The second feature is unlimited access to all courses. Yes, all courses, unlimited access. There is no limitation. Number of limitation is not there. Number of times you can watch the videos, you can review, you can make notes, you can ask doubts. और क्या चाहिए? That too top educators of India on one platform. You have top educators from Mumbai, from Banaras, from Delhi, from Calcutta, from Bareilly, from Rajasthan, from Dehradun. Means across nation. All the top faculties are there to teach you. You can take live classes from any educator anytime of your choice. Exhaustive coverage of syllabus. Yeah, entire coverage of syllabus is there. Regular doubt clearing session is there. Means every fourth class is the doubt clearing session. Means first class, second class, third class, you have a doubt, let's suppose, for any doubt. Or let's suppose you miss the class and you watch the recorded class. You can still ask your doubts in the fourth class. A very beautiful session. Live test series are there. So you can watch your performance also. Study material in PDF format, answer writing sessions, mentorship and guidance. You get so many sessions on motivation, career counseling that helps you to make your future bright. So you must join plus features now and use this referral code Ram Ahuja. Get 10% discount. You can refer to your friends, relatives, colleagues, your juniors. Yeah. But there is lot more to know about you. There's lot more. I tell you what is that. Daily practice session, weekly mock test series, and let me introduce to you that class 11 science and commerce complete syllabus batches are going on right now for 2021 session. 11th commerce in English and in Hindi, 11th science English medium as well as Hindi medium. That too with different timing options. You can join class 12 science and commerce complete syllabus batches for 2021. मैंने कहा था ना बहुत कुछ है आप लोगों के लिए. You have numerous things. Class 11 science and commerce NCERT weekend batches. Let's suppose you are unable to join the weekdays batches, you can still join weekend batches on Saturday and Sunday for class 11 commerce in science, English medium and as well as Hindi medium. कितना कुछ है ना आपके लिए, इसलिए बोलता हूँ प्लस कोर्स को अभी ज्वाइन करो और अभी रेफरल कोड को यूज करो. डोंट वेस्ट टाइम. क्लास 12 साइंस एंड कॉमर्स NCERT weekend batches
11th क्लास के लिए वीकेंड बैच है, 12th क्लास के लिए भी वीकेंड बैच है, सैटरडे को संडे को यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस. Yes, morning timings are available till evening. You can join it, you can learn it. Great opportunity for you guys. A great opportunity. Even revision batches for science and commerce are going on. If you think that you have done the course, you can revise it. You can have a lot of revision for semester 1. I know your exams are approaching, right? For science semester 1, and you can have a revision batches with us. Then practice paper batches for science and commerce. You can join these courses also. A very important announcement for you guys. Let's crack NCERT English. You can join complete batch course on reading comprehension and creative writing skills, and that to a very convenient time, 9 to 10 p.m. Wow, Monday to Friday. I know you must be free at this time, 9 to 10 p.m. Right, from Shipra Mishra or Meenakshi, you can learn all these courses. And if you think this time is not appropriate for you, still you have one more option, 3:30 to 4:30 p.m. Monday to Friday. You can join these batches also. And there is a lot more for you, that is humanities courses. If you have friends, relatives, colleagues, your juniors who are doing humanities courses, they can also join humanities plus courses. All the subjects you will find it here: political science, history, geography, economics, sociology, psychology, English, PE, IP, Hindi, and that too from the top educators across India. मिलवाऊँ आप लोगों को educators से. There is a big list of featured educators on plus courses across India. बस नहीं, और भी हैं. Let's see. और भी हैं. So you have all the featured educators from across India to teach you humanities plus courses. Must join and use this referral code Ram Ahuja. And fees is very affordable. For 11th and class 12 subscription, it is 938 rupees per month only. Yeah, only 938 rupees per month. And for class 12 subscription, it is 1125 rupees per month. That's it. Very affordable price. You must join these courses now and use this referral code Ram Ahuja. Let's come to the quiz session and let's begin with the quiz. Your first question is, आपको करना क्या है? Let me tell you. अकाउंट्स के क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना है. नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. ऑप्शन 1, क्वेश्चन 1 एंड योर ऑप्शन. Yeah. The first is, wow, great. Aha. Journal is a book of primary entry. One option. Option 2, a book of secondary entry. Option 3, a book of final entry. Option 4, both secondary and final entry. क्वेश्चन आसान नहीं है, आंसर आसान है. आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, अपनी कमिटमेंट को फिक्स करना है ताकि चेक किया जा सके कि क्या आपकी कमिटमेंट सही है, क्या आपका आंसर सही है. सिर्फ सोचना नहीं है, कमेंट बॉक्स में अभी आंसर डालिए. क्वेश्चन 1 ऑप्शन विच एवर यू चूज, 1, 2, 3 और 4. यू हैव 4 ऑप्शंस. हरी अप फास्ट, डू इट नाउ. Don't wait guys, don't wait, do it now. This is the correct time. Mention your option in the comment box. मैं देखूंगा, पढ़ूंगा उसको मैं, कितने लोगों ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए. आई विल चेक इट पर्सनली. या डू इट नाउ. जर्नल इज कॉल्ड ए. ऑप्शन 1, a book of primary entry. Option 2, a book of secondary entry. Option 3, a book of final entry. Option 4, both secondary and final entry. Let me introduce to you to the correct option. The correct option is a book of primary entry. Yes, correct answer. Your next option, business transactions are recorded. 1,
in chronological order, 2 weekly, 3 at the end of the month, or 4 all of these. Business transactions are recorded. Option 1 in chronological order, option 2 weekly, option 3 at the end of the month, option 4 all of these. सोचिए समझिए बताइए और अपने आंसर्स को लॉक कीजिए. Very important, your answer should be locked. How? In the comment box. Write question 2 and your option 1, 2, 3 or 4. सोचना तो बनता है. सोच भी लिया, समझ भी लिया, मान भी लिया, लॉक भी कर दिया. नहीं किया, करो. ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा. आप लॉक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. Either you win or you learn. Both the way you are the winner. तो आप या तो जीतेंगे या लर्न करेंगे, तो दोनों वे में आप विनर हैं. तो फॉर मी यू आर द विनर, सो गो अहेड, प्रोसीड. लॉकडाउन. लॉकडाउन वर्ड ऐसा चढ़ गया है कि बस लॉक कर दीजिए. चलिए अब हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं. कंप्यूटर जी बताइए करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज वाओ, सीधा तीर की तरह. बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन chronological order. Recording transaction in a journal is called 1. Posting, 2. Journalizing, 3. Transfer, or 4. Ruling. सोचिए क्या होगा ऑप्शन. Recording transaction in a journal is called 1. Posting, 2. Journalizing, 3. Transfer, 4. Ruling. अजीब गरीब क्वेश्चन है ना. और ये बेसिक फंडा से क्वेश्चन है. मुझे पता है ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत जनरल एंट्री नहीं पूछ रहे, बहुत बेसिक फंडास आपसे पूछ रहे हैं. और इस बेसिक फंडा के अंदर में प्रॉब्लम आती है. आती है कि नहीं आती है. लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा. चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को. आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड. लॉक कर दीजिए ऑप्शन अपनी. ऑप्शन 3 ट्रांसफर, हाँ, और रूलिंग. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है. दिक्कत आती है, बेसिक फंडास क्लियर नहीं होते हैं. रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. सीधा तीर निशाने पर, अर्जुन के तीर की तरह. Which of the following accounts will be credited on giving cash donation? ओहो, अब सफर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया. हाँ, अब नई चीज आ गई आपके सामने. डेबिट क्रेडिट, रूल्स रेगुलेशंस, क्वेश्चन आंसर्स. अरे वाह, ये तो मस्त मलंग होने वाला है ना. मस्त मलंग. चलिए देखते हैं आप कितने मस्त और कितने मलंग होते हैं. लेट्स सी. योर ऑप्शंस आर which of the following accounts will be credited on giving cash donation? Cash account, donation account, purchase account or discount received account.
भैया कैश डोनेशन दे रहे हो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री मारो कटाक से आंसर क्लिक कर दो। हाँ, यहाँ पर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जनरल एंट्रीज का। अगर जनरल एंट्रीज का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका आंसर बिल्कुल तीर एकदम निशाने पे लगेगा। डोनेशन अकाउंट, डोनेशन दे रहे हो तो क्रेडिट डोनेशन ही होनी चाहिए नहीं? डिस्काउंट है? नहीं, डिस्काउंट तो नहीं है यार, ये डोनेशन दी है आपने। अरे, कैश में दी है, अच्छा। तो परचेज अकाउंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन को लॉक कीजिए आप, ताकि मैं भी अपनी ऑप्शन को अनलॉक कर सकूं। कि लॉक और अनलॉक चलता रहेगा लॉकडाउन की वजह से, आप भी लॉक कीजिए ताकि मैं अनलॉक कर सकूं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन? 1 कैश अकाउंट, 2 डोनेशन अकाउंट, 3 परचेज अकाउंट और 4 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लॉक कर दिया जी आपने? बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आंसर को लॉक कीजिए। क्वेश्चन 4, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। चलिए कंप्यूटर जी आंसर को अनलॉक कीजिए, एंड आंसर इज कैश अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड, पूछ रहे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब कैश जा रहा है तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट को ना। एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन? इज कैश अकाउंट। Sale of goods to Ram for cash is debited to Ram, cash account, sales account or stock account. Sale of goods to Ram for cash is debited to. एंट्री क्या होगी इसकी? Sale of goods to Ram for cash is debited to. एंट्री सोचिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर आप जनरल एंट्री कर पाएंगे, जनरलाइज कर पाएंगे, तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। और अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं, तो डू कमेंट। यस, आई डू रिक्वेस्ट यू टू कमेंट इन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 5, ऑप्शन जो भी आप चूज करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4। इससे आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा आपकी कमिटमेंट के बारे में, बेसिक्स फंडास के बारे में, और आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। डर लग रहा है? आंसर गलत भी हो सकता है। मैंने आपसे बार बार एक ही बात बोली है, ईदर यू विन और यू लर्न। So this time you may win or you may learn. So don't worry, go ahead, proceed. बढ़ो भाई, बढ़ो आगे, फटाफट, जल्दी जल्दी। यस, डोंट वेस्ट। दूसरों की कमेंट पढ़ने में लग गए हो, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। डोंट रीड अदर्स कमेंट। वो उनका अपना चॉइस था, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हमें तो आपकी चॉइस चाहिए, आप क्या चूज करते। आप लॉक करेंगे तो हम कंप्यूटर अनलॉक करेंगे, इसलिए आप लॉक कीजिए और मैं अनलॉक करता हूं आंसर। Sale of goods to Ram for cash is debited to. Is debited to cash account. क्योंकि कैश में एंट्री कर रहे हो तो राम का रोल नहीं आता, इसमें एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? कैश अकाउंट हो रहा है, सिंपल एज सच। राम का नाम आ गया, ये याद जरूर रखना, राम आहूजा रेफरल कोड है। खाली राम मत यूज कीजिएगा, राम आहूजा इज द रेफरल कोड, यूज दिस कोड। Withdrawal of cash from business by the proprietor is credited to.
1 ड्राइंग्स अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, 3 कैश अकाउंट और 4 बैंक अकाउंट। जनरलाइज सेम, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलूंगा, जनरल एंट्री कीजिए और करेक्ट आंसर ऑप्ट कीजिए। अगर जनरल एंट्री आप प्रॉपर करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही करेक्ट आएगा। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा, कहते क्या है उसको? अगर कोई बिजनेस से प्रोप्राइटर विड्रॉल करता है, व्हाट दैट टर्म्स इज कॉल्ड, उस टर्म को क्या बोलते हैं? एनीथिंग विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग। अच्छा, तो आंसर 1 होगा। कर दो लॉक? नहीं। चलिए, जनरल एंट्री तो आप समझ गए टर्म क्या होता है। इफ द समथिंग इज विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। बट एंट्री क्या होगी यहाँ पर? विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू, क्या बोलते हैं उसको? जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू, यानी क्रेडिट किसको करेंगे? जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? सिंपल, मैंने कहा ना, जनरल एंट्री पर फोकस करो, फंडास पे फोकस करो, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ही आएगा आपका। आप रॉन्ग नहीं होंगे। रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। खैर, आप भी रॉन्ग नहीं होंगे इससे। Anil purchased 1000 add gel roller pens at the rate rupees 50 each, less trade discount of 20%. Purchases account will be debited by, छोड़िए ऑप्शन को, छोड़िए, पहले जनरलाइज करके देखिए। ऑप्शन देख के तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है और जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है। आप एक बार जनरल एंट्री करके देखिए क्या होगी। अनिल परचेज्ड, अनिल Anil purchased 1000 Agile roller pens at the rate rupees 50 each, less trade discount of 20%. Purchases account will be debited by, oh, क्या आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस मालूम है? यदि हाँ, तो आपका आंसर करेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और यदि ना, तो फिर तुक्के पे डिपेंड करेगा। आप क्या तुक्का लगाते हैं, गेस वर्क क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये। चलिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। Anil purchased 1000 Edgel roller pens at the rate rupees 50 each, less trade discount of 20%. Purchases account will be debited by. Okay, आपको जनरलाइज करने की तो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? अमाउंट बताना है। अब वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क मालूम है या नहीं मालूम। अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में फर्क मालूम है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए, पेन कितने हैं? 1000 पेन्स हैं। ओके, रेट क्या है? 50 रुपीज़। तो टोटल प्राइस कितना हो गया लिस्टेड प्राइस इसका? 50 इंटू 1000 दैट इज 50,000। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000।
और 50,000 में से 10,000 को अगर लेस करते डिस्काउंट को तो क्या हुआ 40,000। अब यहाँ पर दो तीन ऑप्शन आ रही हैं, एक ऑप्शन एक है 50,000, ऑप्शन टू है 40,000, ऑप्शन थ्री है 45,000 और ऑप्शन फोर है 60,000। अब प्रॉब्लम ये 45 तो होगा नहीं, क्योंकि 50,000 का 20% हमारा जो होता है वो 10,000 होता है। अब इसको ऐड करें या लेस करें ये देखना पड़ेगा। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो कॉमन सेंस कहती है लेस होगा, ऐड नहीं होगा, ये डिस्काउंट लेस होता है, राइट। तो 50,000 में से अगर मैं 10,000 लेस करता हूँ तो 40,000 आता है। अब कंफ्यूजन सिर्फ दो पॉइंट में रह गई, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर तो नहीं आएगा, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ये दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, इसमें से अब आपको चूज करना है। आई हैव गिवन यू 50-50 ऑप्शंस, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, वन और टू होगा। अब आपको बताना है कि परचेज अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने अमाउंट से होगा, पूरे 50,000 से होगा या 40,000 से होगा, ये आपको बताना है। देखिए बहुत क्लोज कॉन्सेप्ट तक मैं आपको ले जा चुका हूँ, आगे का डिसीजन आपका होगा। और जो भी डिसीजन आपका है प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लॉक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लॉक कीजिए कि अमाउंट 50,000 होगा या 40,000 होगा। लॉक कर दिया, क्योंकि आप लॉक करेंगे तो हमारा आंसर अनलॉक होगा। चलिए लॉक कर दिया आपने, पक्का कमिटेड। चलिए द करेक्ट आंसर इज 40,000 रुपीज, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम परचेजेस में से लेस कर देते हैं, जो नेट प्राइस आता है उस पर हम परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स एट द रेट ₹50 each, less trade discount of 20%. So 50,000 minus 20% discount, that is 10,000. Rest amount is 40,000, जिस पर परचेज अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। ओ इतना बड़ा क्वेश्चन, चलिए आपको टाइम देते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन है Anil purchased 1000 Edgel roller pens at ₹50 each, less 20% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 30 days. Anil paid ₹10,000 within 30 days and balance amount after 30 days period. Purchase account will be debited and discount received account will be credited respectively with. एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। Anil purchased 1000 air gel roller pens at the rate ₹50 each. अनिल ने 1000 एडजेल पेन खरीदे और 50 रुपए का एक पेन है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20% का और कैश डिस्काउंट है 3% का। इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, Anil paid ₹10,000 within 30 days period and balance amount उसने पे किया है आफ्टर 30 डेज पीरियड। अब आपको ये बताना है कि परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट कितने से क्रेडिट होगा, ये आंसर आपको चूज करना है और आपके ऑप्शंस है आपके सामने।
जी बताइए। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, ये आपको बताना। 40,000 और 300, 40,000 और नील, 40,000 और 1200 और 40,000 और 900। बहुत कंफ्यूजन है, बिल्कुल मुझे मालूम है कि क्वेश्चन आसान नहीं है, और ये तब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपको डिफरेंस ना मालूम हो ट्रेड डिस्काउंट के बीच में और कैश डिस्काउंट के बीच में, और कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है, दोनों का पर्पस भी अलग अलग होता है, और किसको रिकॉर्ड करते हैं किसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितनी पेमेंट पर मिलता है, पूरी पेमेंट पर या जितनी पेमेंट विद इन टाइम पीरियड की गई है उस पर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए। हाँ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं। पहली बात तो ये कि 1000 के पेन खरीदे, 1000 पेन खरीदे 50 रुपीज़ का, तो टोटल लिस्ट प्राइस कितना हो गया 50,000, 50,000 रुपये। उसका 20% लेस कीजिए आप, 50,000 का 20% हो गया 10,000, 10,000 को 50,000 में से लेस कीजिए तो वो हो गया 40,000 रुपीज़। यानी कि आपकी जो परचेज रिकॉर्ड होगी वो होगी 40,000 रुपये। लेकिन चारों ऑप्शन में 40,000 दे रखा है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा डिस्काउंट के अमाउंट पर। 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, और अनिल ने 10,000 विद इन 30 डेज पेमेंट कर दी है, तो 10,000 पर डिस्काउंट मिलेगा 3% विच इज 300 रुपीज। सो करेक्ट आंसर इज 40,300। Which of the following is correct entry to record cash purchase of rupees 3,000 from Amar? Which of the following is correct entry to record cash purchase of rupees 3,000 from Amar? 1, 2, 3, 4. Which of the following is correct entry to record cash purchase of rupees 3,000 from Amar? आपने अमर से कैश परचेज किया है 3,000 रुपीज़ का। अब आपको करेक्ट एंट्री बतानी है। ऑप्शन 1 कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट बाय 3,000 रुपीज़, अमर डेबिट टू परचेज अकाउंट 3,000 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट रुपीज़ 3,000, और परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। सारी एंट्रियाँ मिक्सचर है ना, घुमा फिरा करके कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है, सारी के सारी मिक्सिंग कर रखी है एक साथ में। बताइए जी, तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप बताइए आंसर क्या होगा, लॉक कर दीजिएगा आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ, आप अपने आंसर को लॉक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसको अनलॉक करते हैं। मिल गई करेक्ट एंट्री आपको? चलिए आंसर लॉक करते हैं। द करेक्ट एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर,
हाँ, अमर से परचेज किया तो अमर होना चाहिए ना, नॉट एट ऑल, क्योंकि कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज नहीं है। अगर क्रेडिट परचेज होता तो हम अमर को क्रेडिट करते, वो लायबिलिटी बन जाता हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कैश परचेजेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 3000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। X sells goods on credit to Y. X, he receives 10% trade discount from X. Seller कौन है? X sells goods to the credit to Y. X is the seller, Y is the buyer. He receives 10% trade discount from X and a further 5% cash discount if paid within 15 days. Y bought goods with a list price of rupees 2 lakh from X. Which of the following journal entry would correctly record the sale in the books of X? I repeat the question. X sells goods on credit to Y. He receives 10% trade discount from X and a further 5% cash discount if paid within 15 days. Y bought goods with a list price of rupees 2 lakh from X. Which of the following journal entry would correctly record the sale in the books of X? And your options are भैया, ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं तो आराम से बैठा हूं, अब आप आराम से क्वेश्चन कीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए और चेक कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है आपका। हाँ, लंबा चौड़ा हिसाब किताब वाला क्वेश्चन है, अकाउंटेंट है भैया आप, करिए करिए। पहला ऑप्शन कहता है वाई को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो 1,70,000 से। दूसरा ऑप्शन कहता है वाई को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो 1,80,000 से। तीसरा कहता है एक्स को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो 1,90,000 से। चौथा ऑप्शन कहता है एक्स को डेबिट करो 2 लाख से, सेल्स को क्रेडिट करो 1,70,000 से और डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करो 30,000 से। अरे बाप रे बाप भैया, ढूंढो करेक्ट एंट्री क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है ना, ढूंढिए ढूंढिए पक्का। चारों में कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन हो गई है। इतनी कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन पता है कब होती है? जब हम सारा फोकस ऑप्शंस पे डाल देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऑप्शन को छोड़ के पहले जर्नल एंट्री खुद कीजिए, फिर ऑप्शन में ढूंढिए क्या उनमें से कोई करेक्ट आंसर है कि नहीं है। अगर उसमें करेक्ट आंसर है तो आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे पाएंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं सारा, फिर ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है, और जो गलत हो जाता है। तो ये फिट बिठाना ही तो गलत है, फिट नहीं बिठाना, हमें एक्चुअल में आंसर करना है। देखिए जरा करेक्ट आंसर क्या है। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 1,80,000। क्योंकि यहाँ पर उधार दिया जा रहा है इसलिए वाई को डेबिट किया जाएगा और सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। और यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 10%, और 2 लाख रुपए की गुड्स हैं। 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। 20,000 को 2 लाख में से माइनस करो, हो गया 1,80,000। तो करेक्ट आंसर इज वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,80,000 रुपीज। Just a recall for you guys. My referral code is Ram Ahuja and the fees for the 11-12 subscription is
938 rupees per month only if you take 24 month subscription for both 11th and 12th class. So just nominal amount 938 rupees per month, and you must use referral code before proceeding to pay. You are going to get 10% discount. Yeah, so you have to use the code Ram Ahuja. This is going on Join Plus courses on Unacademy by using referral code Ram Ahuja and get 10% discount for you. अगर आप 12th क्लास को सब्सक्रिप्शन लेते हैं for 12 months, it is 1125 rupees per month only. 1125 rupees per month only, right? Do join Plus course now. Don't wait. This is the right time. Join Plus course now and get 10% discount. Trade discount received on purchases is recorded in the books of account as follows. 1, 2, 3, 4. Trade discount received on purchases is recorded in the books of account as follows. 1, 2, 3, 4. Trade discount is credited to discount received account. Trade discount is deducted from the list price and recorded at net value. Trade discount is debited to discount allowed account or any of A and B, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन. 1 और 2 में से कुछ भी कर सकते हो या 3 करोगे. That you have to choose. हाँ, कुछ ज़्यादा ही फंडास क्लियर हो गए ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर में. अब तो दुकान पे जाके भी ट्रेड डिस्काउंट मांगोगे, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ रेफरल कोड यूज़ करो, डिस्काउंट यहाँ भी ले लो आप. 10% discount by using referral code Ram Ahuja. Trade discount received on purchases is recorded in the books of account as follows. 1, 2, 3, 4. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. लॉक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. खाली बैठ के वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा. कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन 11 एंड योर ऑप्शन. इट्स 1, 2, 3 और 4. You have to choose the correct option. Choose the question number and the correct option. 1, 2, 3 or 4. Mention in the comment box your answer. Yeah. मैं ऑप्शन अनलॉक कर दूं आपके लिए. Trade discount received on purchases is recorded in the books of account as. One कहता है trade discount is credited to discount received account. Wrong. It's a wrong option. क्योंकि trade discount को हम discount consider नहीं करते. That means it is not recorded in the books of accounts. तो फिर क्या करते हैं? Trade discount is deducted from the list price and recorded at net value. यानी परचेज को हम नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू. A sole trader took goods costing rupees 1000 from stock for his own use. The normal selling price of the good is rupees 1500.
Which of the following journal entries would correctly record this? A sole trader took goods costing rupees 1000 from stock for his own use. The normal selling price of the good is rupees 1500. Which of the following journal entries would correctly record this? Your options are before you. डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय रुपीज 1000, ऑप्शन 1 है. ऑप्शन 2 है डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 1500. ऑप्शन 3 है डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेजेस अकाउंट बाय रुपीज 1500. और ऑप्शन 4 है डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट ड्राइंग्स अकाउंट बाय रुपीज 1000. आपको बताना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन. भाई सोल ट्रेडर ने अपनी ही दुकान से अपने घर के लिए सामान उठा लिया. अब अपनी ही दुकान का सामान लेके जा रहा है ना भाई, पड़ोसी से थोड़ी खरीदेगा. अगर अपनी ही दुकान पर कोई सामान मिलता है तो दुकानदार अपनी दुकान से लेके जाएगा ना. अब क्वेश्चन ही आता है कि उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपीज, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 1500 रुपये था. अब आपको ये बताना है कि एंट्री क्या होगी. पहली बात, आप उसको सेल रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिकॉर्ड करोगे, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करोगे, क्या करोगे? और करोगे तो डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? हाँ हाँ हाँ, मस्त कंफ्यूजन ना, मस्त कंफ्यूजन. कंफ्यूजन को फ्यूज निकालो, उसको ठीक करो, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी. लॉक कर दिया जी, आंसर लॉक कर दिया. तो लीजिए हम भी अनलॉक कर देते हैं. द करेक्ट आंसर इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट रुपीज 1000. ऑब्वियस ही बात है, दुकानदार अपने आप को 1500 का थोड़ी बेचेगा, तो सेल थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, बल्कि परचेज को कम कर देगा 1000 रुपीज से. यस, और क्योंकि वो विड्रॉल कर रहा है गुड्स, तो डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट. द करेक्ट एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट रुपीज 1000. Cash discount received is recorded in the books of account as follows. Cash discount received is recorded in the books of account as follows. 1. Cash discount is credited to discount received account. Cash discount is reduced from the invoice price. Cash discount is debited to discount allowed account or any of A or B, यानी कि 1 और 2. लॉक कर दिया जी आंसर आपने. प्लीज लॉक योर आंसर बाय कमेंटिंग बिलो. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिलो में मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑप्शन 1, 2, 3 और 4. मैं जल्दी से अनलॉक करने लगा हूं आपके लिए, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है. अनलॉक कीजिए. यस कंप्यूटर जी, अनलॉक कर दीजिए. एंड द करेक्ट आंसर इज कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नाम से हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर अस, और इनकम को क्रेडिट किया जाता है. राइट, ग्रेट. Bad debts are earlier written off and now received are credited to. Bad debts हुए थे
जिसको डूब खाता कहते हैं हिंदी में। बैड डेट्स आर अर्लियर रिटर्न ऑफ, हम राइट ऑफ कर चुके हैं, अब हो गया रिसीव। तो क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग? 1 2 3 4। Bad debts are earlier written off and now received are credited to 1. Bad debts account, 2. Bad debt recovered account, 3. Miscellaneous income account, 4. Debtors account. Yes, the correct option is bad debts recovered account. Bad debts recovered account. Entry क्या होगी? Cash account debit to bad debts recovered account. Is that clear? Let's move to the next question. Akhil, who owned rupees 10,000, became insolvent. 75 paisa in a rupee was received from his estate. Account received and credit to Akhil's account will be. ओहो, इंसॉल्वेंट हो गए भाई साहब। अखिल हु ओन्ड रुपीज 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अखिल जी का तो दिवाला निकल गया। 75 पैसे इन ए रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उनकी एस्टेट से 75 पैसा मिला 1 रुपए में। अकाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिट टू अखिल्स अकाउंट विल बी। कितना अमाउंट जो है हम क्रेडिट करेंगे अखिल्स अकाउंट में बेटा, ये आपको बताना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज इजी क्वेश्चन। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। अ लिटिल बिट लॉजिक, अ लिटिल बिट कॉमन सेंस, आंसर्स आपके पास में। जल्दी से आंसर को लॉक कीजिए बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन 15, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, विच एवर इज योर आंसर। डू इट फास्ट। भाई 75 पैसा यानी रुपये का मतलब क्या है? 75 पैसे मिलेंगे, 1 रुपया मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे? इसका मतलब है 75%, यानी 10,000 का 75% हो गया 7,500। दैट इज द करेक्ट आंसर। ललित हु ओन रुपीज 20,000 became insolvent. 70 paisa in a rupee was received from his estate. But debts account will be debited by, हाँ क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पर, सेव मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया। योर ऑप्शंस आर यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट है, आपसे मत समझिएगा क्वेश्चन को। ललित हु ओन रुपीज 20,000 became insolvent. 70 paisa in a rupee was received from his estate. Bad debts account will be debited by 1 20,000, 2 10,000, 3 6,000 और 4 14,000। यहाँ बताना है बैड डेट्स कितने अकाउंट से डेबिट होगा।
70 पैसा का मतलब है 70% रिसीव होगा, यानी कि कितना रिसीव नहीं होगा, दैट इज 30%, और 20,000 का 30% होता है 6,000. I hope you got the answer correct. Is that clear? Correct answer? A compound journal entry has equal debits and credits, generally extends to several pages. Third, does not require narration. Or four, all of these. बताइए. A compound journal entry has equal debits and credits. 1. 2. Generally extends to several pages. 3. Does not require narration. Or 4. All of these. 1, 2, 3 or 4. Yeah. तीन निशाने पर has equal debits and credits. Trade discount allowed is deduction from the gross sales. Sales is recorded in the books of account at 1. Gross sales and trade discount separately. Net sales invoice. None of the above. Any of A and B. Trade discount allowed is deduction from the gross sales. Sales is recorded in the books of account at. किस पर करेंगे? 1, 2, 3, 4. जल्दी से फास्ट आंसर को लॉक कीजिए. हमारे दो क्वेश्चन पेंडिंग है. फटाफट जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लॉक कीजिए अपने आंसर को, ताकि हम भी अनलॉक कर सके अपने आंसर को और आप तक करेक्ट आंसर पहुंच सके. हरी अप फास्ट. द करेक्ट आंसर इज नेट सेल्स इनवॉइस. Journal entry for stock left unsold at the end of the year is. Aha, this is good question. This is good question. Journal entry for stock left unsold at the end of the year is debit closing stock account and credit trading account. 2. Debit trading account and credit closing stock account. 3. Debit profit and loss account and credit closing stock account. 4. Debit closing stock account and credit profit and loss account. Journal entry for stock left unsold at the end of the year is. And लॉक कर दिया? जल्दी कीजिए. Have you locked the answer? Have you locked the answer? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिए. क्वेश्चन 19 ऑप्शन 1, 2, 3 और 4. कमाल लोग करते हैं. द आंसर इज closing stock account debit to trading account. Let's move to the final round. Check of rupees 1000 received from Ramesh was dishonored. Journal entry will be. एक चेक था 1000 रुपीज का जो रमेश से आया था, वो डिसऑनर्ड हो गया. तो अब आपको बताना है एंट्री क्या होगी उसकी. जर्नल एंट्री विल बी. It's a sales return account debit to Ramesh account 1000 rupees or Ramesh account debit to bank account 1000 rupees. Option 3, sales return account debit to suspense account. Or 4, none of the above. अनलॉक कर दे जी.
The correct answer is Ramesh account debit to bank account ₹1000, क्योंकि रमेश पे से हमारा डेटर बन गया और बैंक अकाउंट हमारा खाली हो गया, यानी कि माइनस हो गया, राइट। थैंक यू so much for watching this video. Do join the Plus courses now and use this referral code Ram Ahuja and get 10% discount. See you soon in the Plus courses. Till then, take care. Bye bye.